Welcome back, friend. Standard 12, admission of a new partner, Gujarat Board, textbook, sum number 9, Astha and Ahna. Astha and Ahna are partner in a firm. The balance sheet of the firm as on 31st March 17 was as under. Opening balance of capital must be credited by balance BD 76 and 48 400. Now profit, वर्कमैन कंपेंसेशन फंड, ये कोई वर्कर इंजर्ड होता है तो उसको कंपेंसेशन देने के लिए प्रॉफिट सेपरेट रखा है. अगर कोई इंजर्ड होता है तो लायबिलिटी है वरना प्रॉफिट है. देखिए इंफॉर्मेशन में कुछ दिया है. यस सर, एडजस्टमेंट नंबर 4, द क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन इज एक्सेप्टेड 3200. किसी वर्कर को इंजरी हुई होगी तो उसको 3200 दे रहे हैं तो वो हमारी लायबिलिटी है. वर्कमैन कंपेंसेशन फंड क्लेम 3200. हियर वर्कमैन कंपेंसेशन फंड दिया हुआ है 4800, उसमें से 3200 पे करना होगा. तो बाकी का प्रॉफिट है जो सरप्लस है वो पार्टनर को मिल जाएगा. तो वो कितना है 1600 बचेगा. 4800 प्रॉफिट है, उसमें से 3200 दे दिया तो 1600 डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर. वर्कमैन कंपेंसेशन फंड इन ओल्ड रेशियो गिवन और नॉट. नहीं, old ratio not given and therefore it is considered as an equal according to rule of partnership. 1600 distribute कीजिए 800 and 800. Now investment fluctuation fund also profit to write off loss on investment. अभी इसको पेंडिंग रखिए. Provident fund, bad debt reserve, creditors, bills payable, no problem. Goodwill, old goodwill in balance sheet. According to rule, old goodwill written off, and whenever goodwill written off, goodwill means our asset. If it is written off, it is considered as a loss, and loss must be debited to old partner. Goodwill, G/W यानी goodwill. 8,400 in equal ratio, 4,200, 4,200. Now, building, machinery, investment, debtor, stock, cash, opening balance of cash. Cash means our asset, debited. $16,000. Advertise campaign expenditure. ये लॉस है. लॉस ओल्ड पार्टनर को ही मिलेगा ओल्ड रेशियो में. Advertise expense 3,200 in equal ratio 1,600 1,600. Profit and loss, it's a loss. Loss written off in partner capital account, debited equally 4,000 in equal ratio 2,000 and 2,000. Now Sonu will bring rupees 80,000 as her capital. Capital brings by new partner. Cash comes in, and whenever cash comes in, it must be debited. Cash account debit. It is given by Sonu to Sonu account 80,000 by cash. And 7,200 as her share of goodwill in cash. Cash comes in, must be debited. Cash account debit, it's the amount of goodwill and therefore credited to goodwill account. 7,200 by cash. Next one.
New profits and loss sharing ratio 4:3:3. Now listen me. Old ratio not given, and therefore according to rule Astha and Ahana 1:1 equal 1 and 1 2 1/2 1/2. Here new ratio given 4:3:3. Astha, Ahana and Sonu 4:3:3. 4 and 3 7 and 3 10. 4 10 3 10 3 10. Now goodwill is to be valued 40,000. ये कैसे हुआ? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. देखिए, goodwill valued 40,000. It's a goodwill of entire firm 40,000. ये गुडविल नया पार्टनर लाया, वो भी बोला, और गुडविल की रिवैल्यूएशन भी आपको दी. ये दोनों कभी नहीं आया. देखा आपने, सभी सब देखिएगा. अगर गुडविल की कैलकुलेशन, गुडविल कितना लाया वो भी बोला, और गुडविल की एंटायर फर्म की गुडविल की कैलकुलेशन भी बोला. ये दोनों क्यों आए, बात करते हैं अभी. लेकिन पहले नया पार्टनर जो गुडविल लाता है वो पुराने को देना पड़ता है. आप जब जानते हैं सब, गुडविल यहां से उठा के ये दोनों को देना है, क्योंकि ये दोनों को लॉस होता है. तो ये 7,200 आया, उसमें से इन दोनों को कितने कितने दे, तो उसके लिए सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड करना पड़ेगा. या ओल्ड रेशियो भी है और न्यू भी है, दोनों है, तो फिर सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड करो. किसको कितना लॉस है उसको उतनी गुडविल दो. तो पहले ये काम करते हैं. देखिए, old Astha 1/2 minus new Astha 4/10. क्रॉस में होता है 10 1 10 minus 2 4 8 upon 10 2 20. 10 minus 8 2/20. यह सेक्रीफाइस किया है आस्था ने. अभी आहना old ratio 1/2 minus new ratio 3/10. क्रॉस में 10 1 10 minus 2 3 6 upon 10 2 20. 10 minus 6 4/20. 220 और 4 20. 20 इक्वल निकाल दीजिए, तो 2:4 यानी 1:2. इट्स sacrifice ratio. Goodwill withdrawn here and transferred to old partners in ratio of sacrifice 1:2. Goodwill account debit to partners capital. By goodwill $7,200 1:2. 2,400 and 4,800. लेकिन बात हम ये करते थे कि गुडविल लाया, वो भी किया आपने, और एंटायर फर्म की गुडविल का कैलकुलेशन भी दिया. ये दोनों क्यों दिया? वो इसलिए दिया कि नया पार्टनर पूरी गुडविल नहीं लाया होगा. सुनिए मेरी बात, ये दोनों नहीं आ सकते कभी साथ में, लेकिन अगर आए तो ये समझना चाहिए कि नया पार्टनर अपनी पूरी हिस्से की गुडविल नहीं लाया होगा, तभी ऐसा होता है. देखिए ये कैसे पता चलेगा. न्यू पार्टनर रिस्पॉन्सिबल टू ब्रिंग गुडविल इक्वल टू हिज शेयर. नए का जो शेयर है उसके हिसाब से उसको गुडविल देनी पड़ती है. तो एंटायर फर्म की गुडविल है 40,000, उसमें नया कितना देगा 310. उसका शेयर 310 है. 40,000 इंटू 310 12,000. न्यू पार्टनर इज रिस्पॉन्सिबल टू ब्रिंग गुडविल 10,000. तो 12,000 देनी पड़ेगी. उसमें से वो लाया कितना 7,200. तो बाकी का 4,200 का क्या करेंगे? वो उसको देना ही पड़ेगा. उसको न्यू पार्टनर रिस्पॉन्सिबल टू ब्रिंग गुडविल ₹12,000, बट इंस्टेड ऑफ 12,000 न्यू पार्टनर ब्रिंग ओनली 7,200. Here 4,800 less. ये नहीं लाया,
तो लाना ही पड़ेगा। अगर नहीं ला सकता तो उसके अकाउंट से निकाल लीजिए, उसका अकाउंट में कैपिटल क्रेडिट है उससे निकालना हो तो डेबिट करना पड़ेगा। ये और न्यू पार्टनर अकाउंट डेबिट करके ओल्ड पार्टनर को दे देना पड़ेगा 4800। सोनू अकाउंट डेबिट टू आस्था टू आना 4800। अभी बाकी की गुडविल है वो डिस्ट्रीब्यूट कीजिए 1:2 में 1600 3200। हियर टू आस्था 1600 टू आहना 3200। एक ही मिनट। जैसे हिडन एडजस्टमेंट होते हैं आप देखते रहिए, बराबर सोच समझ के सम कीजिए। आहना will take over investment at 19,200 here सॉरी पहले यहां पे लिखना रह गया, टू आस्था टू आहना तो क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन एक्सेप्टेड, ये हो गया पहले ही। आहना विल टेक ओवर इन्वेस्टमेंट एट 19,200। हियर इन्वेस्टमेंट गिवन 20,000। इट इज टेकन ओवर बाय आहना। आहना इज रिसीवर अकाउंट डेबिटेड 19,200 इन्वेस्टमेंट। Here investment 20,000 but taken over by new partner at 19,200. Here 800 rupees loss. But for writing of investment loss, here investment fluctuation fund given 1,600. It's a separate profit to write off loss on investment. ये इसीलिए ही रखा है कि अगर इन्वेस्टमेंट में कुछ लॉस होता है तो इसके सामने वो रिटर्न ऑफ करो। ये प्रॉफिट रखा है स्पेयर में, तो 1,600 प्रॉफिट है, उसके सामने यहाँ पे 800 रुपीज का लॉस हुआ, वो रिटर्न ऑफ करो तो नेट प्रॉफिट फिर भी बचता है 800। तो ये ओल्ड पार्टनर को दे देना चाहिए बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। 800 बचता है तो इक्वली 400 और 400 दे दीजिए दोनों को, क्योंकि ओल्ड रेशियो इक्वल है। Accrued interest on investment 2,400 is not recorded। आज नहीं तो कल मिलेगा। हमारा रिसीवेबल है एसेट साइड, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2,400। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट मिलने वाला है, हमारी इनकम होगी तो उसको क्रेडिट करो। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट accepted bills payable rupees 2,000 which were drawn by creditors not recorded। क्रेडिटर्स को हमने बिल्स पेबल दे दिया लेकिन रिकॉर्ड नहीं किया, तो अभी करो। क्रेडिटर्स हमारे डाउन होंगे क्योंकि उसको बिल्स पेबल दे दिया। क्रेडिटर्स है 12,000 लायबिलिटी साइड, उसमें से 2,000 निकाल दीजिए क्योंकि बिल्स पेबल दे दिया उसको। अभी बिल्स पेएबल दिया तो बिल्स पेएबल बढ़ जाएगा, क्रेडिटर्स में से निकाला तो बिल्स पेएबल में ऐड करो। बिल्स पेएबल 6,000 ऑल्सो लायबिलिटी साइड प्लस न्यू उसको दिया 2,000 ये 8,000 नाउ। बुक वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज 20% लेस देन मार्केट वैल्यू। अभी देखिए ऊपर जो बुक वैल्यू है बिल्डिंग की कितनी दी है 40,000, वो मार्केट वैल्यू से 20% लेस है, तो कंसीडर करना पड़ेगा बिल्डिंग की वर्किंग नोट। इफ मार्केट वैल्यू 100 देन बुक में क्या किया है 20% लेस देन मार्केट वैल्यू। बुक में 20% लेस है तो माइनस कीजिए 20% of 100 20। now book value 80, book value 80 then market value 100। here book value 40,000
देन मार्केट वैल्यू हाउ मच, इसका आंसर आएगा 50,000. तो बिल्डिंग एसेट साइड, आवर एसेट ऊपर 40,000 दी है लेकिन मार्केट वैल्यू 50,000 है, इंक्रीज बाय 10,000. बिल्डिंग इंक्रीज, आवर प्रॉफिट इट मस्ट बी क्रेडिटेड टू revaluation account. Out of insurance premium paid 4,800 is for next year. इंश्योरेंस प्रीमियम में 4,800 नेक्स्ट ईयर का है, यानी प्रीपेड है, हमारा रिसीवेबल है एसेट साइड. प्रीपेड इंश्योरेंस 4,800. आउटस्टैंडिंग अगर होता तो डेबिट करते रिवैल्यूएशन में, और ये प्रीपेड है इसलिए क्रेडिट करेंगे. Adjustment over now, balance sheet. कैपिटल कंप्लीट, कंपनसेशन फंड रिकॉर्ड हो गया, फ्लक्चुएशन फंड रिकॉर्ड हो गया, प्रोविडेंट फंड आवर लायबिलिटी 6,400 पीएम. बैड डेट रिजर्व, उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है. पीडीआर यहां पर भी लिख सकते हैं, डेटर्स में से माइनस करके भी लिख सकते हैं. 8,000. Creditors recorded, bills payable recorded, goodwill recorded, building recorded, machinery 32,000, no change. Asset side. Investment complete हो गया. Debtors 25,200. Stock 14,400. Cash already recorded. Advertise campaign and profit and loss recorded. Now total 'Net profit transferred to old partners in old ratio, and old ratio is equal $8,600. Now total 89,600. Here 66,200, and here 80,000. $89,600, 66,200, and 80,000.
balance CD $39,200 $75,200 $81,800. Balance of capital liability side. Astha, Ahana and Sonu, 81,800, 39,200 and 75,200. Now, goodwill account clause. Now, cash account. $1,03,200. Cash, our asset, 1,03,200. Now total. $232,000.
231 800. $232. Thank you very much. Practice it yourself and share with maximum student. Thank you. फ्रेंड इस टोटल में थोड़ी सी डिफिकल्टी है. ये 89,600 नहीं 89,800 है, तो ये यहाँ पे 82,000 बैलेंस आएगी. यहाँ पे 82 लिखना है बजाय 81,800 के. बस इतना ही. सॉरी फॉर इनकन्वीनियंसी. थैंक यू वेरी मच. ये करेक्शन कर लीजिएगा. सॉरी. थैंक यू वेरी मच.